तो कंसिस्टेंसी माने ये है कि अगर कोई पॉलिसी अपन फॉलो कर रहे हैं तो अपन वही पॉलिसी फॉलो करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अपन को उसको चेंज करना पड़ रहा है। जैसे हाँ, कौन बोल रहा है? सानिका पड़े नहीं, जस्ट पवन भी है लाइन पे, सो इंग्लिश में अच्छा, ओके, सॉरी। होगा। So basically, consistency is a concept according to which we keep on following the same accounting principles and accounting concepts till indefinitely, and we do not change them until and unless there is some kind of requirement to do so. For example, जैसे there is some kind of change in government law, and according to that government law, you have to change the accounting policy. So that is that point when you change your accounting policy or your accounting concept. Secondly, you were following the wrong policy or the industry norm has changed, so now you got to follow a different kind of accounting policy. इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गिविंग एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, you were depreciating your asset on straight line method, but now the government mandate has come that you have to depreciate the assets on WDV, that is written down value method. So that's when you change your accounting policy. Okay, whenever you change your accounting policy as per consistency concept, you got to disclose, you got to inform the shareholders that you are so you have changed the your accounting treatment or accounting policy. Second one is materiality. Materiality का simple example देता हूँ. I'll give simple example of materiality. For example, अपना ना we have some kind of manufacturing business supposedly. Okay, now to work in office we got some stationery, and in stationery we got a paper rim. ठीक है. Now paper rim has 500 pages and it cost 1000 rupees. So basically one page costs 2 rupees. So now what you can do, you can say that you have expended rupees 1000 on stationery, or what you can do is you keep 1000 in asset, and whenever you take out a sheet you charge 2 rupees into your P&L account. So the materiality concept says that if a transaction is very small and it has got very less value, so we need not maintain that transaction into very high detail. मतलब कि उस स्टेशनरी को यू पुट इट एट 1000 और उसे भूल जाओ एंड लेट इट गो. मतलब डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ डिटेल. मैं बहुत ही ब्रॉड सेंस में मटेरियलिटी को समझा रहा हूँ. ठीक है. ग्रॉस मार्जिन. ग्रॉस मार्जिन आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज ये क्वेश्चन के अंदर बार बार आ रहा है. इट्स कमिंग अगेन एंड अगेन इन द क्वेश्चन. सो ग्रॉस मार्जिन का अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ ग्रॉस मार्जिन, देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, देन देयर इज अ नेट मार्जिन, एंड देन देयर इज अ नेट प्रॉफिट. ओके. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट? सी, बेसिकली when you make a profit and loss account now, in actuality, in reality, in practical life, you make two accounts. You make a trading account and you make a profit and loss account. Okay. So gross profit is something that you earn just by doing your business, nothing else. I'm repeating again. Gross profit is anything which you earn only by doing your business. Like for example, this I've bought something for 100 rupees and I'm selling it for 150 rupees. That's it. Those 50 rupees will be my gross profit. I've not reduced anything else from this 50 rupees. This 50 rupees is purely a trading profit. 50 that I've earned only and only by doing the business. So that is a gross profit. Now out of that 50 rupees, when you start deducting different expenses, for example, you deducted salaries, you deducted depreciation, you deducted some kind of insurance, you deducted some kind of taxes, and you deducted some kind of discounts, anything and everything else you deducted, then you arrive at a net profit. That is the net profit. That is the difference between a gross profit and net profit. Gross margin is basically the percentage of gross profit, and then net margin is basically profit of net percentage, net profit percentage. Okay. Now COGS. COGS is basically cost of goods sold. सीधे simple meaning. If I bought something for 100 and I have sold it for 150, then 100 is my COGS. Basically 150 का माल कितने रुपए का मैंने खरीदा था, that is my cost of goods sold. Now we have two adjustments in this, with stock and without stock, but we'll talk about it later when we'll encounter this in some kind of questions. FDRs we'll discuss a bit later. Debit credit I'm not discussing because sir has covered it and it can be confusing. So not discussing that. WDV and SLM, just to give a taste, WDV is basically written down value method and SLM is straight line method. In WDV, you put the percentage on the opening value
जो भी एसेट का होगा, जैसे इफ यू हैव 100 रुपीज ऑफ एसेट एंड यू आर डिप्रिशिएटिंग इट एट 10%, सो 10% 10 रुपीज 90 रुपीज हो गया द रिटन डाउन वैल्यू एसेट का. फिर नेक्स्ट ईयर यू विल डिप्रिशिएट 10% ऑन 90, बेसिकली दैट इज द थिंग. SLM is straight line, the amount of depreciation stays the same. So 100 rupees and you're depreciating it by 10%, so it will depreciate 10 rupees for each and every year. Whatever is the value of the asset, doesn't matter. Now coming to ABDIAS is basically accrual based double entry accounting system. So I have covered all the concept into this ही, ताकि एक साथ ही अपने को पूरा समझ में आ जाए. वैसे तो इट्स नथिंग न्यू, मतलब वी हैव बीन डूइंग दिस, बट स्टिल फिर भी एक बार वापस अपन समझ लेते हैं. अक्रूअल बेस्ड, लिख देता हूँ, accrual based double entry accounting system. कोई नया नहीं है, मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ इसमें. दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग. बेसिकली each and every transaction will have two aspects, a debit and a credit. And see, whenever you put a journal entry now, you put debit and credit and they are always equal. And that is what this concept is. Double entry matlab ki while you are journaling, while you put an entry into journal, you put two transactions over there. One is debit and one is credit. That is double entry. And accrual is also a concept that is given in the books. Basically, accrual means all the expenditures or all the incomes that you have incurred in an accounting period must be booked in that accounting period only. That is the basic concept of accrual based accounting system. इसकी वजह से ही, because of this accrual based system, we got to have adjustments that are need to be done after we close the books. ठीक है. So basically these were some advanced accounting concepts which I was discussing. एक एडजस्टमेंट वाला एक थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं. व्हाई डू वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट एंड आफ्टर बाद में लेते हैं. सानिध्य जी भाई, डेबिट क्रेडिट थोड़ा एक दो लाइन में बोल देना क्या? डेबिट क्रेडिट वापस करें. हाँ भाई. बेसिकली क्या है, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है. Basically debit credit, just consider debit and credit as two different words, nothing else. I'm not going to give any definition and any meaning to this. Just two words, these are debit and credit. Now basically what happens is, whenever there is a money outflow, see, जब भी पैसा निकलेगा ना, whenever there is a money outflow, just I'm concentrating on the accounts जो कि अपने को regularly use करने हैं. ठीक है. Whenever you are paying something, you are paying from bank, you are paying from cash, so you have to credit that account. You have to credit cash or you have to credit bank whenever you are paying. Okay. Now as per double entry system, just analyze, if you are paying something, then you must be getting something. So when you are paying, if you are crediting, then whenever you are getting, you got to debit that. For example, I bought a machinery. So what I'll do, I'll debit the machinery and I'll credit my cash or bank. ठीक है. Now, if I'll go to some other variant, suppose करो I'm buying a machinery, but I'm not paying right now. I'm getting that on credit. So what is stagnant? My machinery is coming in. So definitely we are going to debit that. So machinery debit हो जाएगा. Now, if I'll debit the machinery, then जो भी चीज होएगा, that the other thing will get credited. Make sense क्या, या कोई और तरीके से समझाऊं? नहीं समझ गया. ठीक है, मतलब समझ रहा है. अगर कुछ जा रहा है, whenever there is something going which belongs to you, which you own, OWN, so if it's going, then you got to credit that. And whenever something new is coming, which you have bought, you got to debit that. पार्थे म्यूट कर लेते. You got to debit that. ये मोटा मोटा रूल हो गया असेट का. एक्सपेंसेस के लिए क्या होगा? सेम रूल. एक्सपेंसेस मतलब आई एम पेइंग समथिंग, सो व्हेनेवर यू पे यू गॉट टू क्रेडिट. तो जो भी एक्सपेंस, विचएवर एक्सपेंस आई एम डूइंग, वो अपने आप डेबिट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आई एम पेइंग सैलरीज, तो सैलरीज डेबिट हो जाएगा, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा. सिंपल सी बात है. ठीक है. अब नाउ सपोज आई एम रिसीविंग समथिंग, सो
आई एम रिसीविंग समथिंग में क्या था, अपने को एसेट, जैसे एसेट था, इफ आई एम पेइंग समथिंग एंड आई एम रिसीविंग एन एसेट, तो एसेट को डेबिट करना था। इसका उल्टा कर लो, सपोज आई एम सेलिंग समथिंग, suppose I'm selling some goods, or suppose I'm selling some kind of machinery, or if I'm selling some kind of an asset, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कैश मिलेगा। तो अगर मुझे कुछ मिल रहा है विच आई ओन, OWN, तो उसको अपने को डेबिट करना है, सो कैश विल बी डेबिटेड। और अपना जा क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपना मशीनरी जा रहा है, तो मशीनरी इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, सिंपल। ऐसे इफ आई एम रिसीविंग सम काइंड ऑफ एन इनकम, सो व्हाट आई एम रिसीविंग सम काइंड ऑफ कैश, तो मेरा कैश डेबिट हो जाएगा एंड माई इनकम विल बी क्रेडिटेड। सिंपल है। एक्सपेंस के टाइम क्या था, कुछ जा रहा है तो एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब कुछ आ रहा है, इफ आई एम अर्निंग समथिंग, तो मेरा क्या होएगा, कैश और बैंक तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि इट इज कमिंग, और इनकम मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको ऐसे मत सोचो कि पहले कुछ जा रहा था तो मैं कैश बैंक को क्रेडिट कर रहा था, तो अब मेरे पास कुछ आ रहा है तो मैं कैश बैंक को डेबिट कर रहा हूँ बट इनकम को तो क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब इनकम जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। जस्ट कैश और बैंक से आप लोग चलोगे ना तो यू विल फील मच मोर कंफर्टेबल। कीप दैट बेस कि कैश बैंक से सोचो, कैश बैंक आ रहा है तो इट वुड बी डेबिटेड, तो अदर पार्ट विल बी क्रेडिटेड। कैश बैंक जा रहा है तो इट विल बी क्रेडिटेड, और जो भी उसका अदर पार्ट होगा वो डेबिट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, डेबिट क्रेडिट। इसका कोई और किसी को कोई एग्जाम्पल हो, जिसको किसी में दिक्कत आ रही हो, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो तो वो मेरे से पूछ ले, तो अपन उसका डेबिट क्रेडिट का रूल डिस्कवर कर लेंगे, या उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो अपन आगे चले। क्लियर, आगे आगे। आगे चले, ठीक है। अब अपन एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था, अपन वो कर लेते हैं कि प्रैक्टिकलिटी में होता क्या है और एडजस्टमेंट एंट्रीज का रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्यों पड़ रहा है। क्योंकि जब हम ही बुक्स बना रहे हैं और हम ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम एडजस्ट करके ही बुक्स बना लेना, हम उसका एडजस्टमेंट अलग से क्यों देते हैं, क्वेश्चन में अलग से क्यों आता है वो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सपोज देर इज अ बैंक और देर सम काइंड ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, रियल टाइम पे अकाउंटिंग होता है, या जैसा सर ने बताया था कि दिन में वो वाउचर्स रख लेते हैं और बाद में अकाउंटिंग करते हैं, दैट काइंड ऑफ सॉर्ट्स, या जिसमें डेली बुक्स क्लोज करते हैं, वैसा अकाउंटिंग हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस, अकाउंटिंग हो रहा है, ट्रांजैक्शंस पंच हो रहे हैं, जनरल लेजर सब कंप्यूटर अपना बना रहा है, बैलेंस शीट अपने आप बना रहा है, रियल टाइम के ऊपर बनता रहता है। सो व्हाट हैपेंस इज 31 मार्च के रात को 12 बजे ना अपने आप बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस बन के जनरेट होके नेक्स्ट डे आ जाता है। अब जब मशीन ने ही सब कुछ कर लेना तो आप क्या करोगे, तो सब आपने ये करना है दैट मशीन ने तो सिर्फ वो डेटा एनालाइज किया है जो उसके अंदर डाला गया है, वट एवर दैट यू हैव डेटा दैट यू हैव पंच्ड, उसने उसका आउटकम आपको बना के दिया है। बट ड्यू टू ऑल दीज डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, एंटिटी, अक्रूवल, इनकी वजह से देर आर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर स्टिल आउट ऑफ द बुक्स एंड दे मस्ट बी पुट इन टू द बुक्स। यू गेटिंग माई पॉइंट। और उन ट्रांजैक्शंस को अगर 31 मार्च तक नहीं डाला जा सका है, तो वो ट्रांजैक्शंस 31 मार्च की बुक्स में एंटर होंगे थ्रू द एडजस्टमेंट एंट्रीज ओनली। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च की रात को 12 बजे तक, टिल द नाइट ऑफ 31 मार्च, यू डोंट नो हाउ मच द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज गोइंग टू कम फॉर द मंथ ऑफ मार्च। Nobody knows it. The bill would come on 7th April or 8th April or 9th April, something like that. But if you're following an accrual concept, then you got to keep that transaction into your books, because that transaction is pertaining to the month of March, and you are stating the balance sheet as at 31st March. So that expenditure, if you got to put into books, that would be done through the adjustment entries only. So that's why अपने पास we have the trial balance and then we are asked to do the adjustment entries. Getting my point? अब if somebody has some specific query तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं, otherwise अपने को सर ने यहीं तक पढ़ाया है, सर has taught this much only, मोटा मोटा जो भी सर कहानी वानी सुनाते हैं ना, उसका बेसिक एसेंस जो है वो यही है, इतना ही है। एक बार मटेरियलिटी वापस बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 लाख करोड़ का कंपनी है, ठीक है, अब मैं 2000 रुपए का कोई चीज खरीद के लाया हूँ, तो मैं ना उसका कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं रखने वाला हूँ, मैं 2000 रुपए को बुक्स में डाल दूंगा और भूल जाऊंगा दैट ओके आई हैव मेड सम एक्सपेंस ऑफ 2000, लेट इट बी। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट इन एज एन असेट और उसको महीने महीने डिप्रिशिएट करूं,
या महीने महीने मतलब उसका एक्सपेंडिचर को बुक करूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. दिस इज बेसिक मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी. जैसे मैंने शीट्स का एग्जांपल दिया था कि आई हैव गॉट 500 शीट्स. अब 500 शीट्स में एक साथ तो यूज करने वाला नहीं हूँ. वो रिम, जो रिम होता है ना शीट का, वो पड़ा है, जब जरूरत पड़ता है मैं उसमें से शीट निकाल लेता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन शीट निकालूंगा उसी दिन उसका एक्सपेंडिचर बुक करूंगा. नॉट लाइक दैट. आई विल सिंपली बुक द एक्सपेंडिचर. पेटी कैश जो है शिखर, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आई थिंक. मतलब वो मटेरियलिटी का नहीं है, दैट इज एन कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ थिंग. विवेक भाई बोलो यार, मतलब नो इश्यूज. अच्छा, अब सोच लो मेरा बिजनेस है वो, मतलब कोई चीज का इंस्टॉलेशन, और मेरे पास 10 यूनिट है और एक दिन में 3 यूनिट यूज किया. क्या चीज का यूनिट है? Let's assume I install or I sell cars. I have 10 cars with me. I'll give you example. Suppose you install solar panels. ठीक है. Now solar panels के installation में you need a lot of different kind of nuts and bolts. Okay. So एक typical solar installation वाले के पास 1 किलो nuts रहता है एक टाइम पे. 1 किलो nuts, मतलब उसमें कितने भी nuts हो सकते हैं. So वो तो I understood. You're basically telling कि उसमें 4-5 नट चला जाएगा तो he's not going to, वो मतलब materiality में आ जाएगा. I understood that. No. हाँ, he's not That's going to fine. put the cost of that 4 to 5 nuts. उसने एक बार में 1000 किलो nuts खरीद लिया. That is a part of his costing. That's it. But It's let's gone say into of the cost. 1 kilo he used 750 grams. Now what happens? See, the thing is you have both the ways. If you are very cost conscious, you can do it that way. You wish to put 1000 kgs into the stock and then use 750 grams out of it. You can do it that way. Or the materiality will say that you just simply book the cost of 1000 kgs. Let it be, if you have 250 kgs in your stock, doesn't matter. The 1000 kgs cost is booked into your P&L. That's gone. Got it. That's Okay. basically materiality. So it depends on case to case basis. For example, if there's a Tata Steel, तो उनके लिए 1 करोड़ भी शायद material नहीं होगा. But if it's you or me, then the 1 crore is a very material amount. That way. Got it. और पूछिए यार, मतलब प्लीज गो ऑन विद द क्वेश्चंस. समथिंग या क्वेश्चंस, कोई और चीज डिस्कस करनी हो, कोई एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना हो. सानिध्य, वो एक्रूअल का बता दो यार. क्या चीज? वो एक्रूअल कॉस्ट जो था क्या था यार? एक्रूअल में ऐसा है बॉस, जैसे अकाउंटिंग पीरियड आपका जो भी है ना, मतलब उस पीरियड में आपने कोई एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया हो चाहे नहीं किया हो, but if that expenditure is incurring in that accounting period, you need to book that expenditure. Book मतलब you have to increase your cost with that expenditure. Accrual बस इतना सा concept है, nothing else. For example, 12 months के bills हैं electricity के, and you have paid only 10 months bills only. 2 months का आपका pending है. तो अगर आपने पे नहीं किया तो that doesn't mean that you haven't incurred that cost. You have incurred that cost. You got to book that into your books. वो एक्सपेंडिचर से अपना कॉस्टिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा विद दैट 2 months अनपेड बिल. दैट इज बेसिकली अक्रूवल. ओके भाई, ओके, गॉट इट मैन. Sanitya, when sir asked us to make financial statement, what he actually meant is like what we have to prepare, balance sheet or profit and loss or income statement, what we have to make when he says prepare financial statement. ये 3 चीजें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो. नहीं सॉरी, ये 5 चीजें बोलेंगे सर. जर्नल लेजर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो. बेसिकली कैश फ्लो पढ़ा दिया क्या अपन को? कैश फ्लो इज बेसिकली कैश का अकाउंट यार. वो कैश फ्लो टेक्निकल लैंग्वेज हो गया थोड़ा, सॉरी. बेसिकली अकाउंट ऑफ कैश. क्या? टी अकाउंट ऑफ कैश इज कैश. टी अकाउंट ऑफ कैश इज कैश फ्लो. बेसिक बिल्कुल सही. ओके, एंड इनकम, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? Income statement and profit and loss account is one of the same things. Basically, income statement is a T account only, जिसके अंदर एक तरफ you write incomes, एक तरफ you write expenses, and when you balance that, you determine your net profit or your net loss. That is basically income statement or profit and loss account or income and expenditure statement. Different names. और बोलिए. अरे सानिध्य भाई,
ये बताओ, हाँ जो हाँ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, मतलब और कुछ एक्सपेंसेस हुआ, तो एक्सपेंसेस का कुछ अलग अकाउंट बनता है क्या? मतलब नीलू म्यूट कैश, करोगे प्लीज? नीलू वापस मतलब बोलो। जैसे, यस भाई, सुना ही हाँ, नहीं दिया। एक्सपेंसेस हुआ, मान लो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, ठीक है, सो व्हाट वी आर, हाउ वी आर पेइंग इट, वी आर पेइंग इट बाय यूजिंग कैश, ठीक है। ओके, तो हम लोग जब कैश से रिड्यूस किया, तो उधर पीएनएल अकाउंट से रिड्यूस करेंगे या फिर इधर एक नया अकाउंट बनाएंगे एक्सपेंस सी करके? सी सी यस भाई देखो, क्या होता है ना कि व्हेन यू जनरलाइज द ट्रांजैक्शन, यू जनरलाइज बेसिकली इंटरेस्ट टू बैंक या इंटरेस्ट टू कैश। ठीक है, ये एंट्री करोगे। सो इंटरेस्ट का टी अकाउंट बनाओगे तो यू विल पोस्ट दैट कॉस्टिंग इनटू द इंटरेस्ट अकाउंट, और कैश के अंदर यू विल डिक्रीज योर कैश विद हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव पेड। अभी क्या होता है, when you have made all such accounts, you balance those accounts and you get them into ट्रायल बैलेंस। ओके, फिर ट्रायल बैलेंस से तुम उसको दो पार्ट में ले जाओगे, आगे बैलेंस शीट में ले जाओगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप लेके जाओगे ना, तो प्रॉफिट के लॉस के अंदर एक तरफ प्रॉफिट्स लिखोगे, एक तरफ एक्सपेंसेस लिखोगे, मतलब एक तरफ इनकम्स लिखोगे, एक तरफ एक्सपेंसेस लिखोगे। तो इंटरेस्ट को अब तुम एक्सपेंसेस में लिख दिए, तो वो अपने आप तुम्हारे गेन में से कम हो जाएगा, इनकम में से कम हो जाएगा। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम अकाउंट है, बट इट्स नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो हम है लोग ना, वहाँ पे एक्सपेंस मतलब एक बना के रख देते हैं ना, जैसे। मतलब बेसिकली आप मतलब यू आर समराइजिंग योर ट्रांजैक्शंस कि भाई ये तो मेरे एक्सपेंसेस हो गए एक तरफ, एंड ये मेरे इनकम्स हो गए एक तरफ। सो बेसिकली इन ऑल ऑफ दैट एक्सपेंसेस यू विल राइट दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस आल्सो, तो वो अपना व्हेन यू विल कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो वो अपने आप उसमें से इनकम में से कम हो गया। ठीक है भाई, ओके, समझा? दैट इज द थिंग यार। समझा समझा। और बोलिए। कोई और कॉन्सेप्ट अपने को बात करनी हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? कल सर क्वेश्चंस पूछेंगे थ्योरी पे, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मिला था उस पे थ्योरी पे ही क्वेश्चंस थे। यार एएसएम वाला तो किया था क्या अपन ने डिस्कस? डीजे भाई पेपर है क्या? हाँ, वो कल वाला पेपर। आप शेयर कर सकते हो क्या? अभी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप पे है वो, देख ग्रुप पे तेजस ने है। डाला था शायद, इमेजेस में देखना। आधी थोड़ी चीजें लगती हैं मेरे पास। ये क्या? तेजस का ही भेजा हुआ है, यही होगा। हाँ, आप कर रहे हो क्या शेयर सानिध्य भाई, या मैं कर दूं? एक मिनट खुल रहा है यार। यार आप ही करो, ये मेरे खुलते नहीं है, पता नहीं। ठीक है, चलेगा। करो, आप ही करो एक बार। क्या वो शेयर किया क्या? थैंक यू भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा बड़ा डीजे करो से ना। डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके जूम करेगा तो ज्यादा हो पाएगा।
फेंक दे एप्पल। इसको जूम आउट कर। अरे उस इमेज को जूम आउट कर एक बार, उस पर क्लिक कर दे। हाँ, अब देखो टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में वो डाउनलोड की बटन है जो आ रही है। रुक जा, इंटरनेट स्लो होगा तेरा। शो नहीं कर रहा क्या यहाँ पर? तो राजेश मैं भाई मैं करती देख, हूँ शेयर। हाँ कर दो कर दो। डीजे भाई दिल पे मत लेना। अरे मुझे लगता है उसके इंटरनेट की लग गई थी। अरे लाइट चली गई देखो थी ऐसे ही यार। flop हाँ, करता है भाई, एप्पल टेंशन वाला मत कर। दूसरे एप्पल वाले को तो सपोर्ट करेगा ही भाई। लाइट चली गई है, लाइट। दिख रहा था क्या अभी? हाँ दिखा तो था। हाँ दिख रहा। रुको मैं अपना माइक ऑफ कर देती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी गई। The statement which depicts the financial position of the company is, अरे क्या क्वेश्चन है ये? बैलेंस शीट बहुत सिंपल है यार। The concept that identifies the company with a separate legal enterprise other than the shareholders, entity concept है, business entity concept। किसी को डाउट हो तो प्लीज बता देना यार, मतलब as per dual the transaction affect the certain liabilities। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नहीं। पक्का ना? चले आगे। चलो। अच्छा सानिध्य, एक चीज आज सर बोल रहे थे कि एक तो नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन देखने और दूसरा एक्सपेंडेड इक्वेशन भी देखने। तो एक्सपेंडेड इक्वेशन का तो कुछ लिमिट है क्या, मतलब कि उसमें तो जैसा भी आएगा बढ़ते ही जाएगा एक्सपेंशन। अरे सिंपल सिंपल बात है यार, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है ना? हाँ अब हाँ। लायबिलिटी के दो पार्ट कर लो, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा वही एसेट के ना, दो पार्ट मतलब कर लो, करंट एसेट, नॉन जितने करंट सारे एसेट। सब कंपोनेंट्स होंगे वैसे इक्वेशन तो बस बढ़ता ही जाएगा। बेसिक इक्वेशन यही है, इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं है। इसमें आप इसके नाम बदलते चलो या इसको एक्सपैंड करते चलो, और कुछ नहीं होना। कूल कूल। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा हमेशा। कंपनी हैज ₹100 एज इट्स नॉन करंट एसेट, 50 एज इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर 40। कोई डाउट है किसी को इसमें यार? नहीं। लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए, साबेन्स ऑक्सली सॉक्स एक्ट के बारे में सर आज बात कर रहे थे, सो इसका थोड़ा मैं समरी दे देता हूँ। बेसिकली 2000 यार उससे पहले एक कंपनी हुआ करता था एनरॉन करके, ENRON, यूएस के अंदर। और भाई गजब कार्यक्रम किया उस कंपनी ने। एंड द बेसिकली दैट कंपनी वाज कुकिंग इट्स बुक्स। कुकिंग इट्स बुक्स मतलब जो बुक्स में नहीं है, विशीवाशी, मतलब बेसिक बात ये है, मतलब बिजनेस कंडीशन जितना अच्छा नहीं है उतना अच्छा रोजी पिक्चर उन्होंने बुक्स के अंदर दिखा रखा था। सो बेसिकली व्हाट दे डिड, उन्होंने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया एंड दे वेंट ऑन टू मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट। सो मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट से उनका बैलेंस शीट जो है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगा, करोड़ एंड अरब वैल्यूज के अंदर दिखने लगा बैलेंस शीट उनका, एनरॉन का। एंड द स्टॉक मार्केट जम्प्ड, उनका शेयर प्राइस खूब गजब चलता रहा एंड द प्राइसेस वर ह्यूज। फिर एज एंड व्हेन दे weren't able to, क्योंकि कुकिंग जो है इफ इट्स नॉट मैनेज्ड इनफ ना, सो वो बहुत बुरा फैलता है। फॉर एग्जांपल सत्यम भी था, तो सत्यम वाज आल्सो कुकिंग इट्स बुक्स फॉर 2 to 3 years। फिर जब वो नहीं संभला, सो इट बस्टेड ऑफ। So basically, SOX Act was made in 2002 after that Enron scam, to basically plug in the loopholes that were there in that time's US accounting legislature। बेसिक बात ही है। सो उसके अंदर सब ऐसा अच्छी बात करते हैं ना कि शेयर होल्डर्स को सब कुछ बता के रखना चाहिए और बोर्ड का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ एनीथिंग हैपेंस द बोर्ड विल बी सैक्ड एंड द ऑडिटर्स विल बी सैक्ड एंड द प्रमोटर्स एंड द इन्वेस्टर्स का सेफ गार्ड किया जाएगा, इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सब। तो बेसिकली दैट इज सार्बेन-सॉक्स एक्ट। तो इसका कोई और भी क्वेश्चन आए तो ऑप्शंस पढ़ के आपको जो लगे ना कि हाँ यही होना चाहिए, दिस शुड बी द करेक्ट थिंग, तो वही उसका सही आंसर है। बेसिक बात यही है। तो आउट ऑफ दैट 4 ऑप्शंस द थर्ड वन इज द मोस्ट रेलेवेंट वन। बहुत पुराना एक्ट है, इट्स नॉट ऑफ मच रेलेवेंस। इंडिया के अंदर भी जो कुमार मंगलम बिरला जो हैं, he is also a chartered accountant and he is the chairman of IIM Ahmedabad. So he was the
head of the corporate governance committee that was made in India. Same on the same light of in the light of Sarbanes-Oxley Act only after this 2007 Satyam scam. So उसके अंदर भी सब ये सब बातें था. थोड़ा और भी हो तो एक LODR regulation they came up with that LODR regulation also. वो listed companies के लिए होता है, अपना भी कोर्स में है कि नहीं I don't know. Lord of थोड़ा the Rings. Lord of no Lord of the Rings नहीं, LODR listing obligation disclosure requirements 2015 LODR regulation. वो कुमार बंगलम का ही दिया हुआ है. उसका एक क्लॉज 49 होता है, बहुत परेशान देता है वो लिस्टिंग कंपनीज को यार, बहुत तकलीफ है वो. सो पता नहीं, मुझे नहीं पता बुक में इतना है या नहीं है, बट मेरे को जितना आइडिया था मैंने बता दिया. ओके, वन ऑफ द 3 क्वेश्चन दैट इन्वेस्टर वुड आस्क टू अंडरस्टैंड अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाइसी लगा, मतलब व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है, बट ठीक है, इसके अंदर लगा हुआ है तो आई डोंट नो, इट कुड बी द राइट आंसर. इतना सा मुझे नहीं लगता कि कल ऐसा कुछ आने वाला है यार, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कुछ है ये. आज के बाद तो मतलब कुछ भी आ सकता है भाई. पॉसिबल कुछ भी दे सकते हैं. वैसे मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, जिसके अंदर विल बी गिवन अ ट्रायल एंड विल बी गिवन सम एडजस्टमेंट्स और वी हैव टू सब उसका बैलेंस शीट बनाना होगा. मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन ऐसा होगा और वो थोड़ा सा टाइम भी लेगा, लेकिन वैसे क्विज 15 मिनट्स का ही है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैसा एक क्वेश्चन दे दिया तो उसके अलावा और कुछ कर नहीं पाएंगे. और बेसिक थ्योरी व्योरी पूछा तो वो तो ऐसा कोई है नहीं इशू, इतना कोई बुक में भी इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है. कॉन्सेप्ट अपन ने देख ही लिए हैं, बाकी कुछ होगा तो कल देख लेंगे. कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट्स. ओके ठीक है, अपन बात कर लेते हैं कंजर्वेटिज्म. विल टॉक अबाउट कंजर्वेटिज्म फर्स्ट. ठीक है, सो कंजर्वेटिज्म बेसिकली सी सिंपल मीनिंग जो whatever we have read ना, conservative family kind of, that is also in the accounts also. So conservatism is that you got to book your expenses or your losses in advance and defer your incomes and profits and gains. Basically, for example, suppose you are certain that some kind of expenditure you will be incurring or you will have to pay in the coming times. So what you do, you make a provision of it right now. For example, provision for bad debts. Suppose out of the basic research that you have done, you have realized over the years that out of each and every 100 rupees of worth that I sell, 5 rupees I couldn't collect, or the 5 rupees of worth of debtors do not pay me. So basically आज even sir told us about that provision का accounting का part. So 5% we make provision out of our debtors. So basically that is conservatism. Now realization concept, realization is actually not a concept I would say, but it's the same thing. Actually realization, it's not a concept, it's a standard, it's an accounting standard. Accounting standard 9, basically revenue recognition, that is realization concept. So basically it says that suppose you have sold something and you know that you won't be realizing anything out of that, you won't get any money, so you won't book that profit into your books. I'll explain again. Suppose you are selling something and you know that you won't be able to realize this money, and knowing that also you are selling it, so you won't realize the profit or you won't book the amount into your books. That is basically realization concept. So Or- basically, let's say I sold to a person who is doing badly, then I would say that इसका पैसा शायद नहीं आएगा, so I won't book it as profit. Is that what you mean? Exactly. Supposedly, मेरा मिठाई का दुकान है. I have a shop of sweets, and I'm going to bribe someone, and for that I've taken a 5 kg packet of my laddus. So definitely, I won't be getting anything. So I won't realize its worth into my books. But if I'm giving a very vague example to you, something like that. That is realization concept. पवन भाई, are you comfortable ना? मतलब बैठ रहा है, समझ रहा आ रहा है क्या? हाँ भाई. Okay, great.
Now matching concept जो है, matching concept basically says that whenever you are selling something, so there is a revenue aspect and there is an expense aspect of it. मतलब you are incurring some cost and out of that by selling something you are earning something. So the thing it says that in the matching concept that given event affects both the revenues and the expenses, and the effect of both of them should be recognized in the same accounting period. See, I'll tell you again. Suppose you are buying some product worth 100 rupees and you're selling it for 200 rupees. So you cannot do that in one accounting period you'll book the sale amount of 200 rupees and in the next accounting period you'll book the costing of 100 rupees. You cannot do that. Whatever you are selling, the cost, all the cost that is related to that sale must be realized in that very same accounting period in which you are realizing or you are booking your sales amount. That is basically matching your revenues with your expenses. Whatever expenses that you have incurred to earn some kind of revenue, those two must be booked together in the same profit and loss account in the same P&L account. This is matching concept here. Okay, Pawan bhai, are we good? हाँ भाई, हाँ. Okay, great. And for example, matching concept के अंदर suppose you have incurred some kind of expenditure, revenues of which are going to come in future. So what you do, you basically keep them in prepaid expenses. So you don't keep them in P&L, you keep them in balance sheet. And whenever you earn that revenue, you take out those things from your balance sheet and you put them into your profit and loss account. So again, your expenses are matched with your income. ओके फाइन. मैं एक बार बुक में और देख लेता हूँ कि कोई रह तो नहीं गया है. सम कॉन्सेप्ट इज नॉट लेफ्ट आई सपोज. सानिध्य, या अरे सॉरी यार, मैं अभी ये जब तुम सॉल्व कर रहे थे ना तो मैं मिस कर गया. ये सार्बनेज-ऑक्सली एक्ट क्या है? यस, सॉक्स एक्ट, शॉर्ट में से सॉक्स एक्ट कहते हैं. बेसिकली क्या, एनरॉन करके देयर वाज अ कंपनी एंड ह्यूज स्कैम हैपेंड इन यूएसए इन 2000 in that company, financial scam. So after that USA came with this Sarbanes-Oxley Act in which all the good things are written that supposedly that investors must be keep informed and all the responsibilities are of the board of the directors and that of the auditors, and if they are doing some kind of financial scam they'll be put behind bars or some stringent conditions came in with the SOX Act, and some new corporate governance kind of regulations came in with much more reporting and stuff like that came in SOX Act. So basically अगर SOX Act का question आता है ना, तो out of the options whichever you feel is the right thing that must be done, that is the correct answer for that SOX Act. ओके ओके ओके. सॉरी, मैं शायद टाइम तुमने बताया होगा, मैं उस समय No issues यार, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है. ये बाकी पेपर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. I think ये पेपर नहीं आएगा, मतलब ये तो पेपर तो भाई क्या ये एग्जांपल करते हैं अपन. क्या क्या एग्जांपल करते हैं सानिध्य भाई. एग्जाम्पल कराओ, आओ बताओ कौन सा करें. क्रेडिट डेबिट वाला करते हैं भाई, वो टी बैलेंस वाला जो भी है. हाँ हाँ, 4.4 ही करें क्या, 4.4. हाँ चल जाएगा भाई. ओके ग्रेट. मैं I'll share the screen. मैंने 4.4 किया था जो सुबह मैं गलत भेज दिया था किसी को ग्रुप में. तो यार एक्चुअली मैंने जर्नल नहीं बनाया, लेजर भी नहीं बनाया, मैंने सीधे अकाउंट्स ही बना दिए थे एक्चुअली. तो अपन पहले जर्नल बनाए या तो ऐसा करें या क्या करें बताओ. डेबिट क्रेडिट करना तो जर्नल तो करना ही पड़ेगा ना अपने को. जर्नल करते हैं पहले. ये एक चीज और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैश टू बैंक अकाउंट या कैश टू ऐसा बोलते हैं, वो क्या होता है? वो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है वो. कैन somebody tell me the page number of 4.4? अच्छा मिल गया, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है.
सबके पास क्वेश्चन है ना, मतलब एवरीबॉडी हैज द क्वेश्चन ना? हाँ भाई बस एक मिनट, हाँ बुक खोल रहे हैं। हाँ कर लो। पेज नंबर है 108. So I'll try giving how the Anthony ना? journal is made. Anthony. I'll try telling how the real journal is made. स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? हाँ भाई, हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भाई। तो बेसिकली जर्नल किसी जमाने में बनाते थे. there was a time when journal was actually made. Now all these things are done by a computer, so you really don't get to see how a journal is made basically. So I'll make a journal for you people. So two वाला जो है अपन will try. The first entry is journalize and post adjusting entry, adding other T accounts is necessary. Journalize the and post closing entries. Okay. So the first entry is cost of merchandise sold 3,02,990 rupees. COGS का एंट्री कैसे करेगा? COGS का एंट्री होता नहीं है एक्चुअली. मैं डेप्रिसिएशन की कर रहा हूँ एंट्री. डेप्रिसिएशन ऑन स्टोर इक्विपमेंट 12,750, वो थोड़ा इजी रहेगा. So in a journal, narration is of the most importance, or narration is always starts with being. So this is a journal entry. तो ये टू जो था ना, वो it's a nomenclature of writing and saying. So depreciation to equipment, basically that means you're debiting the depreciation and you're crediting the equipment account. So debit इधर आ गया, credit इधर आ गया. Both the accounts have the same implication basically. And whenever you'll post the transaction, the balance sheet will total any day. ठीक है? तो ये डेबिट टू क्रेडिट हो रहा है ना, मतलब यार जब ये तुम nomenclature हमेशा डेबिट टू क्रेडिट ही होता है. हाँ बस वही पूछना था. हाँ, nomenclature is always like that. Whatever the entry is, only the accounts will change. डेबिट और क्रेडिट के. हाँ, nomenclature ये रहेगा. डेबिट ऊपर रहेगा, क्रेडिट नीचे रहेगा. इधर डेबिट का अमाउंट ऊपर रहेगा, क्रेडिट का अमाउंट नीचे रहेगा. ओके गॉट इट. अच्छा सानिध्या, इसको इस पूरे ट्रांजैक्शन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंड करेंगे तो ऐसा करेंगे कि सिंस डिप्रिसिएशन में इंक्रीज हुआ, दैट इज आउटफ्लो हुआ, तो इसलिए वो डेबिट हो गया 12750 का, और इक्विपमेंट में क्रेडिट हुआ, मतलब क्योंकि उसका, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? We'll do it again. देखो, whenever you own something ना, OWN, अगर वो कम हो रहा है या अगर वो जा रहा है तो that will be credited. ठीक है. So now you have equipment. Credited to which, मतलब अपने को या दूसरे को, मतलब वो नहीं समझ आ रहा. See. I'll tell again. If something is going away, then we'll credit that account. तो अपना depreciation से क्या हो रहा है? अपना asset का value कम हो रहा है. ठीक है? तो उतने का value अपना asset का it's going out of our hands, so that's why equipment is getting credited. Getting my point? अगर equipment credit हो गया तो the second part जो है वो अपने आप debit हो जाएगा. ऐसा अपन समझ लो इसको. Depreciation to equipment. अच्छा पार्थिव, depreciation जो है वो कहीं जाता नहीं है. Depreciation is only an accounting concept. तो depreciation भी books में ही है, equipment भी books में ही है. It's just that it's a part which we do for the matching principle. कि
इस इक्विपमेंट को यूज करके इफ वी हैव अर्न सम रेवेन्यू, तो वो इक्विपमेंट का जो घिसा है ना वो इक्विपमेंट, तो टू रिकॉग्नाइज दैट घिसावा कॉस्टिंग इनटू आवर बुक्स वी पुट डेप्रिसिएशन। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में वो सिर्फ एसेट साइड आएगा? नहीं, देखो विकास भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन है, अपन ने क्या बात करी, अक्रूअल बेस्ड डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट ईदर बोथ द साइड ऑफ असेट्स, मतलब उस केस में या तो असेट ही असेट हिलेगा, या फिर असेट लायबिलिटी दोनों हिलेंगे, या फिर सिर्फ लायबिलिटी हिलेगा। नाउ इन दिस ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन एंड इक्विपमेंट, इसमें असेट और लायबिलिटी दोनों चेंज होगा। तो एसेट में जो हमारा पीपीई है वो घट जाएगा, इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन अमाउंट, इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन अमाउंट। और लायबिलिटी में फिर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा। इफ यू आर स्पेंडिंग समथिंग, तो उससे योर नेट वर्थ इज गोइंग टू डिक्रीज, सो योर कैपिटल अकाउंट इज गोइंग टू डिक्रीज विद दैट। ठीक है, समझा? All the expenses are decreasing your net worth, all the incomes are going to increase your net worth, and this is how the balance sheet stays constant. Okay, cool. Okay, great. Third transaction punch करते हैं। Supplies inventory January 31, 5210, purchase of supplies during the year were debited to the suppliers inventory account. आई थिंक ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, मतलब दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। किसी को डाउट है क्या इसमें? कैसे पता चलता है ऐसा? यार ये आई मीन आप देख के बोल रहे हो ऐसा? क्या क्वेश्चन था? सॉरी यार, द क्वेश्चन मतलब अपन जर्नल ट्रांजैक्शन पंच कर रहे हैं कुछ 4.4 देख के। एग्जैक्टली, है ना? So the third point is supplies inventory January 31, 5210, purchase of supplies during the year were debited to supplies inventory account. ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है that this transaction is just an information, it will not go anywhere. मतलब वो तो एंड में तुम्हारी इतनी सप्लाईज बची थी, ऐसा है क्या? नहीं, January 31 को we purchased 5210 worth of supplies, ये ऐसा कहना चाह रहा है। And now since we have the ledger of company as on January 31, I assume that this transaction was already booked into the supplies inventory 15475. ऑलरेडी, हाँ वही 15475 ऑलरेडी है ना, एंड दे आर टेलिंग यू दैट इट वाज ऑलरेडी डन ड्यूरिंग द ईयर, तो वापस क्यों करेंगे? Exactly. So that's why I think third point will not come anywhere. किसी को डाउट है क्या? ओके, नो डाउट। ठीक है, तो मतलब ये 5210 इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन 15475। ठीक है, बेटर। ओके, ठीक है। एज एंड व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ना, आप लोगों को भी ये पता चलने लग जाएगा कि ये डालना है कि ये बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसमें बेवकूफ भी बनाते हैं। ओके, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹4660। नाउ ये ट्रांजैक्शन देखने से पहले वी शुड सी द ट्रायल बैलेंस की अपने पास ऑलरेडी प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है क्या, एंड आई थिंक वी हैव सम प्रीपेड इंश्योरेंस ओवर हियर। कितना आ रहा है भाई? 38,250 आ रहा है। सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि दैट आउट ऑफ 38,250 4660 परटेन्स टू दिस ईयर। सो अपन उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि एंट्री क्या डालनी है। अरे अपना इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ है ना, तो उसमें मतलब उसमें से इंश्योरेंस डेबिट होगा और वो एक एक्सपेंस में आएगा। इंश्योरेंस डेबिट होगा सानिध्य, करेक्ट? एग्जैक्टली, ओके। क्रेडिट क्या करना है? मतलब डिप्रिसिएशन ही नहीं, क्या कुछ तो होगा मतलब। यार इंश्योरेंस अपने एसेट था जो भी कम हुआ तो विल बी क्रेडिटेड। ग्रेट, बहुत सही नीलू, दैट इज द परफेक्ट रीजनिंग। एंट्री बताइए मुझे आप तो। भाई इंश्योरेंस माइनस करेंगे हम लोग और एक एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। सी यश भाई कर दे मिनट। ये इंश्योरेंस कैश ऐसा कुछ है क्या? यश भाई सुनो, अकाउंटिंग वर्ल्ड में देयर इज नो ऐड और लेस, ओके, देयर इज ओनली डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट ही होगा, रूल सिर्फ आपको लगा के एंट्री बताना है, उससे अपना प्लस माइनस होएगा।
ओके ओके ठीक द है। तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डू इट। तो क्रेडिट करेंगे हम लोग इंश्योरेंस में, प्रीपेड इंश्योरेंस में, और एक्सपेंस में हम लोग डेबिट करेंगे। परफेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो आप। किसी को डाउट है क्या इसमें? फिर सोचो से मत विकास भाई, बोलो। हाँ नहीं अरे नहीं फिर से रिपीट करना एक बार यश। इंश्योरेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट ही होगा ना इंश्योरेंस तो। अच्छा सुनो 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 विवेक, इंश्योरेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस में क्या फर्क है? अच्छा समझ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब पे किया हुआ है तो उससे आप डेबिट कर दोगे 4660। यस। गॉट इट सर, गॉट इट। और क्रेडिट क्या करेंगे? आप बताओ क्रेडिट क्या करोगे? अपना व्हेन वी ओन समथिंग, जब वो जाता है तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यू ओन प्रीपेड इंश्योरेंस और नॉट OWN, so you will credit the prepaid insurance। हाँ, और डेबिट एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है that you are incurring this year, you will debit that, you'll take out that much of 4660 from your asset pool of 38,250 into your expenditure, so you'll debit the insurance and you'll reduce, that is you'll credit your prepaid insurance। नाइस। एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। किसी को डाउट है तो बोलो, मतलब प्लीज, अपन पूरी रात डिस्कस करेंगे इसको, बट इस कॉन्सेप्ट में वो नहीं रहना चाहिए डाउट यार। सानिध्य यार अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, एक बार वापस रिपीट कर सकते हो, दूसरा कुछ लेके समझा सकते हो? अच्छा डीजे भाई, इंश्योरेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस में क्या फर्क है? यू गेटिंग दिस और नॉट? पहली बात तो ये बताओ। हाँ हाँ। प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर असेट एंड इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंडिचर, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज 38,250 का असेट था प्रीपेड इंश्योरेंस का, आउट ऑफ दैट 4660 इज करंट ईयर एक्सपेंसेस, ठीक है। Now, हाँ। whenever your asset is decreasing, या whenever your asset is going out, you credit the asset। सर ने भी बताया था ना, डेबिट हाँ और सब। डेबिट द इनकमिंग, क्रेडिट द आउटगोइंग असेट्स। असेट के अंदर ये रूल था ना। तो अपन ने प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि अपना एसेट अकाउंट था, उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया, और ऊपर अपना जो एक्सपेंडिचर है इंश्योरेंस का, वो अपन ने डेबिट कर दिया। ठीक है ठीक है। अब अगली एंट्री आप ही बताना मेरे को, ठीक है। ये इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा है? एक्सपेंस अकाउंट है? इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट अकाउंट, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा बस एक चीज था एक चीज कि बोलो बोलो नीलू। विकास भाई, नीलू बोलो। यार, जैसे इंश्योरेंस अकाउंट अपना एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, तो एक्सपेंस अकाउंट में इफ एक्सपेंस अकाउंट कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट कम हो रहा है नीलू। हाँ 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 ठीक है, तो एक्सपेंस अपना इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है? वो तो क्रेडिट होता है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अच्छा, एसेट और एक्सपेंस सेम चलता है, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस सेम चलते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ एक हाँ चीज पूछना था सानिध्य, ये हाँ यस जो हम लोग हर एंट्री जितना भी एंट्री कर रहे हैं उस एंट्री का कुछ हेडिंग होगा क्या? मतलब जैसे बुक बुक में है, अगर पेज नंबर 94 पे देखेंगे या 93 पे देखेंगे तो एक हेडिंग के अंदर ग्रेट, फिर नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। एक्चुअल फॉर्मेट के अंदर देयर इज समथिंग लाइक दिस, LF। ये LF क्या है? बेसिकली मींस लेजर फोलियो, लेजर? ठीक है। लेजर फोलियो, लेजर अच्छा फोलियो। ओके। दिस लेजर फोलियो बेसिकली आंसर्स योर क्वेश्चन। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सीरियल नंबर चल रहा है, ठीक है, ईच एंड एवरी सीरियल नंबर विल हैव एन एंट्री। Now, whenever I'll post this journal into a ledger, so that ledger will be, say, it's on page number 10. So what I'll do,
I'll put 10 over here. So whenever I'll see the journal ना और मुझे ledger देखना है तो I'll directly go on to the page number 10 to see my ledger. ठीक है। And जो आप वो पूछ रहे हो ना heading, so basically journal जो है उसमें heading नहीं हो सकता because journal is a chronological order data presentation. अच्छा So as and when the transaction is happening on a day, you keep on posting the transaction. So you cannot have an heading for it कि यार ये asset का इस तरफ है, expenses का इस तरफ है, incomes का इस तरफ है, ऐसा नहीं कर सकते। जब transaction होगा we'll charge it, ठीक है? हाँ ठीक है, तो लेजर में हेडिंग होगा। लेजर में तो लेजर तो इज एन टी अकाउंट ना, तो उसमें तो हेडिंग होगा ही ऊपर कि भाई एक्सपेंस का लेजर है कि एसेट का लेजर है। लेजर यू कैन मेक कि एसेट्स के लेजर सब इस तरफ है, एक्सपेंसेस के लेजर सब इस तरफ है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, दैट यू कैन मेक एनीवे। ओके तो आगे बढ़े। हाँ बुक है ना, बुक में जो पेज नंबर 92, 93 और 94 पे जो कहानी चल रहा है, क्या कहानी चल रहा है यार? मतलब दीज आर ऑल लेजर एंट्रीज 92, 93। हाँ ये लेजर अच्छा, है, लेजर है। बुक में दिया हुआ है, दीज आर ऑल लेजर। अच्छा दीज आर ऑल और लेजर। और टी अकाउंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको टी शेप में बस दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। कूल है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल बढ़िया है, ये भी कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इंटरेस्ट हाँ। अक्रूड ऑन नोट्स पेबल 3730, बताइए जी एंट्री। इसमें तो इंक्रीज होगा, मतलब भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ ना एक, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो इंटरेस्ट में क्रेडिट कर देंगे, नोट्स पेएबल होगा क्रेडिट। पूरी एंट्री बताओ यार। सो इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट 3730 और नोट्स पेएबल हो जाएगा क्रेडिट 3730। या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको, Payable एक्सपेंस डेबिट 3730 और नोट्स पेएबल किसमें जाएगा यार? सबसे पहले देखो नोट्स पेबल है क्या बुक्स में? भाई है ना, क्रेडिट बैलेंस में है ना, क्रेडिट बैलेंस बहुत में है। शानदार। तो क्रेडिट क्या करना है ये तो पता चल गया। सानिद कैश से अपन को क्रेडिट करना है नोट्स पेएबल। क्रेडिट करना है। नहीं एक मिनट यश भाई, इसमें कहाँ लिखा है कि मैंने कैश पे किया है? हाँ ये बात भी है। तो क्रेडिट कर देंगे नोट्स पेएबल और इंटरेस्ट एक्सपेंस में जोड़ दो और 3000। किसी को डाउट है क्या? हाँ तो डेबिट तो एंट्री ऐसा कुछ होगा क्या? एक्सपेंस डेबिट अपना अमाउंट 3730 टू इंटरेस्ट notes- एक्सपेंस हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 3730 और टू क्रेडिट नोट्स पेएबल टू नोट्स पेएबल क्रेडिट। कोई डाउट है क्या? विकास तू कल पास हो गया भाई। वही, अब मेरे को भी यूरेका बोलने का मन कर। चलो नेक्स्ट। नोट्स पेएबल अच्छा। को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं क्या? हाँ बट ये तो इंटरेस्ट हुआ ना, हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं नोट्स पेएबल। नहीं, नोट्स पेएबल को डिक्रीज कर रहे हैं ना, क्रेडिट मतलब नोट्स पेएबल ये क्रेडिट साइड में जो जा रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। विकास भाई नोट्स पेबल क्या है ये बताइए यश। भाई नोट्स पेएबल ये जो है मतलब एक बॉन्ड टाइप का होता है जो कंपनी लेती है। छोटी जो सी कहानी पैसा सुनाता देना है। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। वैसे तो नोट्स जो हैं वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया अब, बट दे आर स्टिल प्रेवलेंट एंड स्टिल रेलेवेंट समटाइम्स। क्या होता है, मैं एक बहुत हाई नेटवर्थ कंपनी हूँ, ठीक है, मैं टाटा स्टील हूँ, ओके। मैंने क्या करा, एक कागज लिया और उस पर लिखा कि इस कागज प्राप्तकर्ता को मैं 50 करोड़ रुपए फला फला तारीख को दूंगा। That I promise to pay 50 crores to the paper holder, to the note holder on this date. ठीक है। टाटा स्टील वो नोट ले जाके रिलायंस को दे देगा और रिलायंस से 50 करोड़ ले लेगा। गॉट इट? अच्छा। अब रिलायंस क्या करेगा, इधर रिलायंस
जो भी डेट मेंशन्ड है उस डेट पे टाटा स्टील के पास जाएगा एंड इट विल कलेक्ट इट्स 50 करोड़ रुपीज. और व्हाट एल्स कैन रिलायंस डू इज रिलायंस ट्रांसफर दैट नोट टू से हिंदुजाज कि सर देखो टाटा ने मेरे को अग्री कर रखा है 50 करोड़ देने के लिए, ये पेपर आप ले लो, आप ले लेना उससे 50 करोड़, आप मेरे को 49 करोड़ रुपए देके मेरे को फ्री कर दो. अच्छा दिस इज बेसिकली अ नोट. ठीक है कि भाई नोट देके मैंने पैसा उठा लिया. पहले होता था किसी जमाने में, अब तो पॉसिबल नहीं है ये. ठीक है, सो दैट इज नोट्स पेबल. अब ऑब्वियसली अगर आपने किसी से पैसा लिया तो उसको ब्याज तो देना पड़ेगा ना. यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू दैट पर्सन. सो नोट्स पेबल मेरी बुक्स में लाइबिलिटी आएगा क्योंकि मैंने पैसे लिए तो चुकाने पड़ेंगे. तो दैट्स व्हाई नोट्स पेबल इज इन बुक्स. और उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर ड्यू होगा तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बुक द इंटरेस्ट एंड आई विल इंक्रीज माय लायबिलिटी. तो बुकिंग इंटरेस्ट डेबिट कर दूंगा और लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आई विल क्रेडिट माय लायबिलिटी. यार वो ठीक है, मैं समझ गया तेरा. जैसे बैंक से तुमने लोन लिया, ठीक है, एंड उस पर कुछ इंटरेस्ट आया, तो हम लोग उसको कैसे अकाउंट कर रहे हैं कि वी आर एडिंग एन अकाउंट, मतलब वी आर एडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द एसेट साइड, और वहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल वहाँ पे हम लोग लायबिलिटी साइड ऐड करेंगे. तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है क्या? ऐसा भी कर सकते हो आप. इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेबल भी एंट्री कर सकते हो, इंटरेस्ट टू नोट्स पेबल भी एंट्री कर सकते हो. इंटरेस्ट पेबल में एंट्री करोगे तो लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट पेबल अकाउंट आ जाएगा, और नोट्स पेबल एंट्री करोगे तो लायबिलिटी साइड में जो नोट्स लिखोगे उसी में ऐड कर देना. हाँ अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, थैंक्स. ठीक है, इंटरेस्ट पेबल आपने बना दिया तो वो एक नया अकाउंट बन गया. हाँ हाँ हाँ, तो वो भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो. अकाउंटिंग में बहुत इंडिपेंडेंस है सर, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए बस. भाई इंडिपेंडेंस है, लेकिन सर को भी तो इंडिपेंडेंस देना चाहिए अपने को. मोस्ट प्रोबेबली देंगे यार सर, आई थिंक देना चाहिए इतना. ठीक है ठीक है ठीक है. ग्रेट. सेल सैलरी अर्न बट नॉट पेड टू एम्प्लॉइज. बताएं भाई एंट्री. और विवेक भाई, यश भाई, विकास भाई, आप नहीं बताओगे, कोई और बताएगा आप. Sales salaries earned but not paid to employees rupees 3,575. एंट्री बताएं. कम ऑन यार, 15 बंदे हैं यार ग्रुप पे. कम ऑन डीजे. पार्थिव, पवन, अरे समीर शिखर भी हैं यार. कम ऑन प्लीज गाइस. सर को कैसा लगता होगा भाई? सही में दिल से बुरा लगता है भाई. विपुल, राजेश भाई. सेल्स सैलरीज ऑन मतलब कैश आया है ना, तो आया है तो इंक्रीज हो, कैश तो डेबिट हो जाएगा. बट नॉट पेड है. भाई कैश लिखा है क्या? कैश आया है ऐसा लिखा है? सेल्स सैलरी डेबिट होगा आई गेस ना. देखो सेल सैलरी अर्न हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन पेड नहीं हुआ है तो हमारा जो अकाउंट्स पेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा. भाई ये बताओ सानिध्य, इसमें सेल्स सैलरीज है, ठीक है, अर्नड आया है, तो इसमें कैश तो नहीं बोला है ना कि कैश आया है? जो बताना आप लोगों ने ही बताना, मेरे को तो एंट्री बता दो क्या करनी है. तो बताओ ना सही बोल रहे या नहीं. फिर मतलब सेल्स सैलरी अर्न अगर है तो सेल्स सैलरी डेबिट है, डेबिट होगा. हाँ सेल्स सैलरी डेबिट होगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा. यस. गलत है क्या? किसी को डाउट है क्या इस एंट्री में? Is anybody having doubt? सेल्स सैलरीज में डेबिट होगा और उधर लायबिलिटी साइड एक पेएबल बनेगा ना, वहाँ पे क्रेडिट होगा. यही है ना? हाँ ठीक. चलिए भाई आगे चलें. अगली एंट्री बताएं.
Interest earned on savings account but not recorded rupees 390. इंटरेस्ट अर्न्ड बोलो राजेश भाई। यहाँ पर भी इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड मतलब ये इसमें डालने की जरूरत है क्या? ये क्या बीच बीच में लोचा कर देता है यार। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? हाँ नॉट रिकॉर्डेड है तभी तो एडजस्टमेंट में है सर। अगर रिकॉर्डेड होती तो ट्रायल में आ जाती। तो जर्नल में एंट्री करेंगे। यस, जर्नल में एंट्री तो होगा। एंट्री विल बी जर्नलाइज्ड। कैश में ऐड तो होगा या इंटरेस्ट एक्सपेंस में कैसे होगा? लेकिन अर्नड तो ट्राई इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को प्लीज एक बार वापस सोचो, ये क्या चीज है, ये व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट होगा क्या? इंटरेस्ट किस पे अर्न किया है अपन ने? सेविंग्स अकाउंट पे। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? कैश एंड इक्विवेलेंट। तो डेबिट क्या करना है? कैश एंड इक्विवेलेंट। तो क्रेडिट क्या करोगे फिर? अरे बाकी बंदों को समझ में आ भी रहा है कि मैं अपन बस टाइम पास कर रहे हैं। गाइस कम ऑन, अगर समझ में नहीं आ रहा है अपन पूरा कॉन्सेप्ट वापस कर लेंगे। मतलब प्लीज, अगर इफ एनीबॉडी इज हैविंग सम इशू। एक तरह से ये ओनर के पास जाएगा ना, तो शेयर्ड कैपिटल के अंडर आना चाहिए। इंटरेस्ट अर्न के अकाउंट्स में डाल देंगे क्रेडिट करके। डेबिट क्या करेंगे सर? डेबिट कैश और क्रेडिट? क्रेडिट वही इंटरेस्ट अर्न। तो वो मतलब क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट ना। तो अरे इंटरेस्ट राजेश भाई डोंट गिव अ मीनिंग, डोंट गिव अ जनरल मीनिंग। क्रेडिट का मतलब हमेशा ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि व्हाटएवर गोज आउट तो वो क्रेडिट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन। क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? देखो समीर भाई ने जो एंट्री बोली उसमें किसी को डाउट है तो अपन उस पर डिस्कस करें। उन्होंने एकदम सही एंट्री बोली है। डेबिट का पोर्शन मेरे को समझ में आ गया, क्रेडिट का पोर्शन नहीं समझ में आया। देखो इनकम्स जो होती है ना, व्हेन यू अर्न इनकम्स यू क्रेडिट देम, ठीक है। व्हेन यू इनकर एक्सपेंसेस यू डेबिट देम। तो सेविंग्स अकाउंट पे अगर आपने ब्याज कमाया, इफ यू हैव अर्न्ड सम इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स अकाउंट, दैट इज योर इनकम। इनकम विल बी क्रेडिटेड and by earning the interest your saving bank account balance has increased, so that means you have received an asset, so that asset is going to get debited. मतलब ठीक है, एक बार इसको ट्रांजैक्शन, ये एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन नहीं था, है ना, इनकम का ट्रांजैक्शन था। एक बार लिखना है इसको। ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे इस अकाउंट को, इस जर्नल एंट्री को अगर मैं चाहूं कि बैलेंस शीट में ले जाना, ठीक है, तो किस साइड को इफेक्ट करेगा ये? आप बताओ। अभी क्या हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स अकाउंट, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट आपने अर्न किया तो उससे आपका एसेट बढ़ेगा, बराबर है एकदम। और मेरा इक्विटी भी बढ़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सारे ट्रांजैक्शन चढ़ गए। अब क्या करना चाह रहे हैं अपन, टी अकाउंट बनाएंगे, ऐसा करें? करते हैं ना। पहले वाला भी चढ़ाएंगे क्या? कौन सा पहले वाला? कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। नहीं, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड P&L में आएगा डायरेक्टली। और सी, अगर इफ यू हैव इनकर्ड सम कॉस्ट ऑन सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज तो वो अपने जर्नल में ऑलरेडी आ चुका है। नहीं समझे मतलब थोड़ा सा शायद आई थिंक इट्स एन एडवांस कॉन्सेप्ट। बट कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड 3,02,990 रुपीज जो है, दिस इज एन इंफॉर्मेशन जो कि अपने को P&L में यूज होएगा। मतलब जितना भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, जरूरी नहीं कि उन सबका जर्नल बनाया जाए, मतलब सबका जर्नल बने। ओके, ये इंफॉर्मेशन को we'll use this in while drafting our P&L account basically। अच्छा, एक तो इस अमाउंट को हम मर्चेंडाइज इन्वेंटरी से रिड्यूस नहीं करेंगे क्या? इस अमाउंट को अपन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी में से ही रिड्यूस करेंगे बॉस। यस। तो अगर वहां से रिड्यूस किए तो हम लोग सेल्स रेवेन्यू में क्रेडिट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हुआ है ट्रायल के अंदर, मतलब ये इसलिए यू ऊपर नीड नॉट डू दैट इन जर्नल अगेन, डबल हो जाएगा। ये पता कैसे चल रहा है भाई कि मतलब जैसे थर्ड वाला स्टेटमेंट हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसमें डेट मेंशन्ड है, राइट? मुझे एक बात बताओ, हाँ 31 जनवरी तक अपन ने पूरा ट्रांजैक्शन इनकर कर लिया है, हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपन ने जो बेसिक पार्ट है कॉस्टिंग का वही नहीं डाला होगा ट्रायल में? नहीं, तो अभी अगर आप ट्रायल देखो तो उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंटरी में 7,680 रुपए लिखा हुआ है, राइट? बराबर। राइट, तो अगर हम इसको अगर हमको पता है कि कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड करने पर हमारा मर्चेंडाइज इन्वेंटरी कम होना चाहिए, तो ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये एडजस्टमेंट होगी, बट ये ट्रायल में ऑलरेडी है। एक्चुअली क्या है यार, ट्रायल बैलेंस के ना कुछ एक आध रूल्स हैं जो कि अपने को अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। और Okay. मैं उसमें नहीं घुसना चाह रहा क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली या तो आगे आएंगे, और अगर मैं अभी बता दिया तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा उस टाइम। हाँ, ओके, है ना। और स्टॉक जो है ना, वो ट्रायल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत मुश्किल से समझ में आता है, सच्ची बात बताऊं तो, और वो यही कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली मैं आइडिया दे देता हूँ, द स्टॉक नेवर कम्स इनटू द ट्रायल, क्लोजिंग स्टॉक डजंट कम्स इनटू ट्रायल, ओनली ओपनिंग स्टॉक कम्स इनटू द ट्रायल। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे ना एडजस्टमेंट का, उसमें आपको हमेशा ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, either you will be given the closing stock or either you will be given the cost of goods sold, either of the two informations will be given to you। ठीक है, ओके। ओके जी, आगे चलें फिर अपन इसमें क्या करें? टी अकाउंट्स बनाए पहले, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा यार बनाने के अंदर। या सीधा P&L बना लें अपन? देखो, टी अकाउंट्स ये सब बनाना क्विज में तो नहीं आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि वो चेक कैसे करेंगे सर? नहीं आ सकता। हाँ सर, चेक 15 करेंगे मिनट कि तो टी अकाउंट बनाने में लग जाएंगे, 15 मिनट तो। एग्जैक्टली सर, चेक करेंगे कि क्या नंबर्स कहीं से कुछ यार मैच कर कल रहा है मेरे कि- हिसाब से सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे और कुछ नहीं आने वाला। वही तो। अब जैसे वैसा कुछ करते हैं ना, जैसे अपना अगर इनकम स्टेटमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस, इससे मतलब जो डेटा आएगा, डेटा के नंबर्स आएंगे, राइट? वैसा कुछ ड्रॉ करना और समझना समझाना वैसा वाला तो नहीं रहेगा, तो वो वाला कवर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं सो डैट कि अगर कुछ मिसिंग डेटा है, सर ने अगर कुछ मांग दिया तो वहां पे फिर हम लोग वो डेटा एंटर कर पाए। P&L मतलब- बना लेगा सीधा, बोलो। बताओ भाई लोग। कुछ तो बोल दो यार। अच्छा, तो ऐसा करो फिर, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज, अच्छा चलो ठीक है, अपन विल ड्रॉ द P&L और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, देखते हैं।
मैंने P&L बना के रखा है, लेकिन आई एम अगेन मेकिंग द P&L. ओके, ओके ग्रेट. बताएं जी. पहले सबसे पहले सेल्स डाल रहा हूं मैं. सेल्स में मेरे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं था. इनकम्स में बताएं और क्या क्या आएगा बताएं. एक एडजस्टमेंट डाला था अपन ने इनकम का, ये वाला. इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया दिखे. हेलो. आ रहा है क्या आवाज? हाँ, आवाज आ रहा है. ओके. अभी हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं. मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ. पहले इनकम्स बनाऊंगा, फिर एक्सपेंसेस बनाऊंगा. ठीक है. ट्रायल में सेल्स का एंट्री कर दिए हम लोग. सेल्स का मैंने एंट्री कर दिया है. ट्रायल में कोई और 716. इनकम किसी को दिख रही है क्या? आगे बढ़ूं? ग्रेट. इसमें किसी को डाउट है क्या? COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एन एक्सपेंस. मेरे पास फिगर दिया हुआ है, मैंने सीधा लिख दिया. स्टॉक का क्या करेंगे वो अपन आगे बात करते हैं. विल टॉक अबाउट व्हाट टू डू विद द स्टॉक. ठीक है. अब while I'm drafting the profit and loss, I'll try putting the journal first. Okay. थ्री फाइव सेवन फाइव. ठीक है, मेरा जर्नल सब कवर हो गया. अब ट्रायल में जो भी दिख रहा है मैं वो डाल रहा हूँ. ओके. अनित्य जी. सर देखो, जो ये जर्नल एंट्री है ना, तो उसमें हर एंट्री पे डेबिट और क्रेडिट दोनों है. ठीक है. जी. तो अब उसमें से ये कैसे तुम कर रहे हो कि ये वाली जो एंट्री ये सिर्फ एक्सपेंस साइड पे आएगी या ये वाली एंट्री सिर्फ इनकम साइड पे आएगी? यार यही तो अपन ने डिस्कस किया जर्नल बनाते समय कि कौन सा पार्ट एक्सपेंस में जाना है, कौन सा पार्ट इनकम नहीं में पर जाना है. नहीं, एक एंट्री का जो पार्ट है वो दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ इफेक्ट करता है ना. बिल्कुल दोनों तरफ इफेक्ट करेगा. जितने भी जर्नल्स हैं वो दो दो बार चढ़ेंगे. अभी मैंने सिर्फ एक इफेक्ट डाला है, दूसरा इफेक्ट आगे आते टाइम में डालूंगा. अच्छा ठीक है, बाय. ठीक है. ग्रेट. एक्सपेंसेस सब डल गए. कोई और एक्सपेंस बच रहा है क्या? देख लो एक बार. मैं बैलेंस कर रहा हूँ अकाउंट को. whatever be the difference will be my profit or loss.
नाउ आई एम ड्राफ्टिंग द बैलेंस शीट। ये बैलेंस कैसे हो गया? बैलेंस ही तो करना है। इनकम मैंने जो स्टेटमेंट किया में वो बैलेंस कैसे होगा? each and every account will be balanced, sir, not just the balance sheet. फिर प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? मैंने जो किया वो आपने देखा था क्या ध्यान से? हाँ, वापस कर रहा हूँ, नेट वापस नेट देखो। प्रॉफिट को ऐड किया ना। ये अभी बैलेंस नहीं है, नहीं। अब बैलेंस है। ओके, ठीक 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 गॉट ठीक। इट? हाँ हाँ, लास्ट स्टेप छूटा था, ठीक है। बढ़िया। पहले एसेट्स लिख लेते हैं, चलिए। इन्वेंट्री बाद में लिखेंगे। छूटा क्या यार? नहीं छूटा, आई थिंक। क्या छूटा? नहीं कुछ छूटा क्या, मैं पूछ रहा था बस। अब नीलू देखना, मैं एडजस्टमेंट्स डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है? दोनों पार्ट्स जल गए। दिस इज ग्रीन। दोनों पार्ट्स जल गए, ठीक है? ये अपना जनरल मोटा मोटी कंप्लीट हो गया एक बार। अब मैं डाल रहा हूँ इन्वेंट्री। ग्रेट। अब क्या बच गया, आप देखें जरा। ये मैच हो गई जी। सही है। ये जो दिया हुआ है कि सेल्स डिस्काउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और सोशल सिक्योरिटी टैक्स एक्सपेंसेस, ये हमने कहीं अकाउंट किया था? ये रहे, ये तो रहा आपका टैक्स, हाँ ये ठीक रहे सेल्स डिस्काउंट, ये जनरल सेलिंग।
सबको समझा गया? हम्म एवरीबॉडी गॉट इट? प्लीज यार, किसी का कुछ क्वेरी है या समथिंग लाइक दैट? समझो गॉट इट। तो अब तो अपना ये क्वेश्चन तो हो गया, कर लिए हम लोगों ने। बताओ क्या करना है और? नहीं काफी है। एक चीज बस ये करना है कि ये जो एक्सेल शीट है ना, ये शेयर कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे यार। कर दो भाई। यस सानिध्य, देखो तुमने अभी टी अकाउंट नहीं बनाया और उसके बिना भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बना दिया, बैलेंस शीट भी बना दिया, तो टी अकाउंट की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि टी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। मे बी यू कैन से दैट कि मैंने बहुत बार ये प्रोसेस कर लिया है, सो आई कैन डायरेक्टली पोस्ट। इफ यू हैव सम काइंड ऑफ इशू तो डेफिनेटली यू शुड मेक अ टी अकाउंट बिफोर पोस्टिंग। मतलब कैसे भी कर सकते हैं, वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल इन। इफ यू आर कंफर्टेबल इन डायरेक्ट पंचिंग तो आंसर तो आता है उससे भी। ओके देन, कूल है। हाँ इन केस और भी किसी को क्वेरी हो तो मैसेज कर देना मुझे, नहीं तो वट एवर वे जैसे भी करना चाहे। डन। ठीक है भाई, ठीक है सानिध्य, थैंक्स अ लॉट। सानिध्य भाई थैंक यू। ओके देन, ग्रेट। बाय बाय, गुड मेरी नाइट। तरफ से चलो। भी कोई वॉइस नोट्स आए जिसमें मैं रो रहा हूँ तो ये समझ लेना कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? रोने जैसी स्थिति किसी की नहीं आएगी यार, डोंट वरी प्लीज। ऐसा पता कुछ नहीं नहीं होगा। भाई। अब तो कल ही धप्पा होगा। चलो, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सानिध्या। थैंक ओके यू। ओके ओके, बाय बाय, Thank you. मच Night. अप्रिशिएटेड, Bye. टेक केयर। गुड चलिए नाइट। बाय, गुड नाइट। हेलो। हाँ विपुल भाई। हाँ थैंक्स भाई, लेकिन मैंने देखा नहीं था मैसेज, लेट देख लिया। तो अगर कोई बात इसका नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ ग्रुप रिकॉर्डिंग में चल रहा है, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ सही है। पक्का भाई, पक्का। ओके, गुड नाइट भाई। थैंक्स यार, गुड नाइट।